डियर स्टूडेंट्स, आज नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नोन एज ड्यूअलिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्यूअलिटी क्या होती है, फिर ड्यूअल पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स एक दूसरे के ड्यूअल होते हैं, और फिर लास्ट में हम किसी गिवन नेटवर्क का ड्यूअल नेटवर्क ड्रॉ करके देखेंगे, उसके स्टेप्स क्या होते हैं ये समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज़ ड्यूअलिटी और व्हाट आर द ड्यूअल पैरामीटर्स। अगर हम किसी नेटवर्क सर्किट की बात करें तो उस सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर हमें इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम केवीएल या केसीएल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो अगर कोई एक गिवन नेटवर्क है जिसको केवीएल या केसीएल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है, अगर किसी दूसरे नेटवर्क को सेम इक्वेशन के थ्रू डिस्क्राइब किया जा सके जहाँ पे उस इक्वेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो किसी और पैरामीटर से रिप्लेस्ड हो, तो इस तरह के सर्किट्स को हम क्या कहेंगे, ड्यूअल सर्किट्स बोलेंगे। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट वी हैव ए गिवन सर्किट एंड डिस्क्राइबिंग इक्वेशन फॉर दैट सर्किट इज गिवन टू यू। सपोज दैट ए सिमिलर इक्वेशन of any other circuit is also available. Both the equations are similar for both the circuits, only the few parameters are replaced by each other. So those parameters are called dual parameters. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ड्यूअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फिर उन ड्यूअल पैरामीटर्स का यूज़ करते हुए किसी गिवन नेटवर्क का ड्यूअल नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ड्यूअल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ड्यूअल पेयर्स की, तो अगर हम सर्किट एलिमेंट्स के केस में ड्यूअल पेयर्स की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस सर्किट एलिमेंट्स लाइक इफ वी आर यूजिंग रेजिस्टेंस देन इट्स ड्यूअल विल बी कंडक्टेंस और इट इज रिप्रेजेंटेड एज G, where G is given as G is equal to what? 1 upon R, inverse of resistance, 1 upon R. Similarly, if we consider inductance, then its dual will be capacitance. Its dual will be capacitance, C. In the same way, if in a circuit capacitance is given, then in its dual network it will be replaced by inductor, that is inductance. If a voltage source is given in a circuit, then in its dual it will be replaced by current source, and vice versa is also true. If current source is given in a circuit, then in its dual circuit it will be replaced by voltage source. Current source will be replaced by voltage source, and voltage source will be replaced by current source. In the same way, if some elements are connected in series in the original circuit, then in its dual circuit they will be in parallel. Their dual will be in parallel. Similarly, if for a circuit the equations given in KVL form, then in its dual circuit similar equation will be obtained using KCL. If for a given circuit equivalent circuit is from Thevenin theorem, then for its dual circuit equivalent circuit can be obtained from Norton. That is, Thevenin equivalent is dual of Norton equivalent. These are some dual pairs which will be used when we draw a dual of any given network. Now I am choosing a network, I am drawing a network, and I am going to discuss what are the steps to draw its dual. So here I am going to draw a given network for which we have to draw a dual circuit of that network. Suppose that there is a voltage source of, suppose it is 10 volt, then there is a resistance 2 ohm, then there is a switch. Switch is such that it will be closed at t is equal to 0.
it will be closed at t is equal to 0. Then here there is a inductor. Suppose that its value is given 2 Henry, and in the parallel branch there is a capacitor and its value is 4 millifarad. Now we have to draw the dual of this given circuit. तो व्हेन वी हैव टू ड्रॉ ड्यूअल, अगर हमें किसी सर्किट का ड्यूअल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप ये होगा कि इस सर्किट में जितने भी मैश होंगे उन मैशेस के सेंटर पे हम नोड डिनोट करेंगे. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 मैश हैं, तो वी विल डिनोट 2 नोड्स नंबर्ड एज नोड 1 एंड नोड 2. अपार्ट फ्रॉम दीज नोड्स one another node will be shown outside the circuit, that is called reference node. तो अगर किसी सर्किट में n नंबर ऑफ मैशेस हैं तो उस सर्किट में कितने नोड्स होंगे, उसके ड्यूअल सर्किट के लिए हम कितने नोड्स लेंगे? तो वी हैव टू टेक n+1 नंबर ऑफ नोड्स. जैसे यहाँ पे 2 मैश हैं तो अगर हमें यहाँ पे 3 नोड्स लेने हो रहे हैं. अब इसके बाद इन नोड्स को हम कनेक्ट करेंगे. कनेक्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि जिस कनेक्टिंग लाइन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं वो लाइन किसी एलिमेंट को क्रॉस करनी चाहिए, किसी पैसिव एलिमेंट को या किसी एक्टिव एलिमेंट को क्रॉस करनी चाहिए. मतलब वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, करंट सोर्स या कैपेसिटेंस, किसी को भी क्रॉस करनी चाहिए. और जिस एलिमेंट को क्रॉस कर रही है कनेक्टिंग लाइन पे, उस एलिमेंट का ड्यूअल एलिमेंट हमें प्लेस करना होता है. कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि नोड 1 और नोड 2 को आप कनेक्ट कर रहे हैं. नोड 1 से नोड 2 के बीच में जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्रॉसिंग एलिमेंट आपका होगा इंडक्टर. तो इस कनेक्टिंग लाइन पे हम क्या लेंगे? इस कनेक्टिंग लाइन पे हम एक कैपेसिटर ड्रॉ करेंगे नोड 1 से नोड 2 के बीच में. ओके, तो अब इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या लेंगे? तो कैपेसिटर की वैल्यू वही होगी जो इंडक्टर की वैल्यू है न्यूमेरिकली, बस उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी. तो इट्स वैल्यू इज़ 2 फैरेड. इसकी वैल्यू कितनी लेंगे हम? 2 फैरेड लेंगे. बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये तो नोड 1 से 2 के बीच में बात होगी. अगर हम नोड 1 से नोड 3 के बीच में देखें, तो नोड 1 से नोड 3 के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे? तो नोड 1 से नोड 3 के बीच में ये स्विच आएगा, ये रेजिस्टेंस आएगा और ये वोल्टेज सोर्स आएगा. तो हमारे पास नोड 1 से नोड 3 के बीच में 3 पाथ हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा जो, अगर हम इस पाथ को लेते हैं, मतलब नोड 1 से नोड 3 के बीच में हमारे पास 3 पाथ हैं. तो अगर हम इस पाथ को लें तो इस पाथ में हमारा एलिमेंट क्या आएगा? अब ये क्लोज स्विच था, तो जब हम यहाँ पे स्विच प्लेस करेंगे तो इट मस्ट बी ओपन स्विच. वी हैव टू शो दिस एज ओपन स्विच, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ये ओपन होना चाहिए इन पाथ 1. सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस के होते हुए से क्रॉस करते हुए अगर हम एक एलिमेंट ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उस पे, उस रेजिस्टेंस वाली लाइन पे हम क्या शो करेंगे? वी हैव टू शो ए कंडक्टेंस. कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी लेंगे? दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ओम. 2 ओम हो और 1/2 ओम का रेजिस्टेंस होगा, मतलब 0.5 ओम का रेजिस्टेंस आएगा. कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस आएगा? तो वी हैव टू ड्रॉ ए 0.5 ओम रेजिस्टेंस. सिमिलरली तीसरी लाइन जो होगी हमारी वो इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू होगी. अब इस वोल्टेज सोर्स वाली लाइन पे इसका वोल्टेज सोर्स का ड्यूअल ड्रॉ करना है, तो वोल्टेज सोर्स का ड्यूअल क्या आएगा हमारा? तो एक करंट सोर्स आएगा. करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या लेंगे? वोल्टेज सोर्स, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि करंट किस डायरेक्शन में जा रही है वोल्टेज सोर्स से, तो करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी. वैल्यू क्या लेंगे? करंट सोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और वोल्टेज करंट की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड वही होगा 10 और वैल्यू हो जाएगी 10 एम्पीयर. ठीक है, तो ये तो बात हुई नोड 1 से नोड 3 के बीच में एलिमेंट्स की, कनेक्टिंग लाइंस की. अब अगर हम बात करें नोड 2 से नोड 3 के बीच में, तो नोड 2 से नोड 3 के बीच में हमारा एक ही एलिमेंट आएगा, ये कैपेसिटर का ड्यूअल. कैपेसिटर का ड्यूअल क्या बनेगा? अगर हम यहाँ से क्रॉस करते हैं तो कैपेसिटर के ड्यूअल के लिए क्या ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे? देयर मस्ट बी एन इंडक्टर, और उस इंडक्टर की वैल्यू क्या लेंगे हम? ये कैपेसिटर 4 मिली फैरेड का है, तो यहाँ पे 4 मिली हेनरी का एक इंडक्टर ड्रॉ कर देंगे. तो ये तो हमारे स्टेप्स हुए
किसी गिवन नेटवर्क का ड्यूअल ड्रॉ करने के लिए स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हम नोड्स असाइन करते हैं। नोड्स कितने लेने चाहिए हमें, जितने मैशेस हैं उससे एक ज़्यादा नोड असाइन करेंगे। उसके बाद हर नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करेंगे बाय क्रॉसिंग थ्रू एन एलिमेंट, और जिस एलिमेंट को क्रॉस करेंगे उस एलिमेंट का ड्यूअल उस कनेक्टिंग लाइन में प्लेस कर देंगे। अब एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, उन एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हम ड्यूअल एलिमेंट्स कनेक्टिंग लाइंस में प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसका ड्यूअल सर्किट ड्रॉ करें तो ड्यूअल सर्किट बनेगा कैसे, ये तो हमने स्टेप्स बता दिए आपको। ड्यूअल सर्किट बनेगा कैसे, तो दिस इज़ आवर नोड 1, this is our node 2 suppose that, and this is our node 3, this is our reference node that is ground। तो नोड 2 से नोड 3 के बीच में हमारा इंडक्टर है, तो नोड 2 से नोड 3 के बीच में सिंपली हमने एक इंडक्टर बना दिया। वैल्यू है इसकी 4 मिली हेनरी। नोड 1 से नोड 2 के बीच में हमारा कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है 2 फैरेड। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर प्लेस कर दिया 2 फैरेड का। व्हाट अबाउट बिटवीन नोड 1 एंड नोड 3, तो नोड 1 से नोड 3 के बीच में आप देख रहे हो कि 3 पैरेलल ब्रांचेज हैं, जो कि यहाँ पे नोड 1, यहाँ पे आप अगर देखें तो इस मैश 1 में 3 एलिमेंट्स हैं। ये स्विच है, ये रजिस्टर है और ये वोल्टेज सोर्स है। ये तीनों सीरीज़ में हैं। तो जब हम इसका ड्यूअल ड्रॉ करेंगे तो इस नोड 1 पे आपके 3 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वो पैरेलल में होंगे। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो ये एक ओपन स्विच होगा। तो ओपन स्विच को आप इस तरह से शो कर सकते हो, t इज इक्वल टू 0, तो ये ओपन हो रहा है। दूसरा एलिमेंट आपका क्या आ रहा है, एक कंडक्टेंस या 1/10 ओम का 1/2 ओम का एक रेजिस्टेंस, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस। और तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू कितनी है 10 एम्पीयर। करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है 10 एम्पीयर। तो दिस इज आवर ड्यूअल नेटवर्क ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ये हमारा इस गिवन प्रॉब्लम का ड्यूअल ड्रॉ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम किसी भी गिवन सर्किट का ड्यूअल सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जितनी मैश हैं उससे एक ज़्यादा आप नोड प्लेस करिए। वो जो एक एडिशनल नोड है वो करस्पॉन्डिंग टू रेफरेंस नोड है। उसके बाद हर नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करना है। कनेक्टिंग लाइन पे हमें जो क्रॉसिंग एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे क्रॉसिंग एलिमेंट ये है तो इसका ड्यूअल ड्रॉ कर दिया गया है, उसका ड्यूअल एलिमेंट रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखें तो मैश 1 में 3 एलिमेंट्स हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग 3 बार हमें कनेक्टिंग लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी नोड 1 से नोड 3 के बीच में। और हर कनेक्टिंग लाइन पे जो एलिमेंट्स हैं उनका ड्यूअल हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो देयर इज ए करंट सोर्स, रेजिस्टेंस और ए कंडक्टेंस एंड ए ओपन स्विच which is dual of closed switch. I think it is clear to you. If you have any problem, you can contact me at any time. Thank you, students.